Good morning, students. Let's continue with mathematics, chapter number 6, Squares and Square Roots, part 4. In this video, further, we are going to discuss next property of finding the square of a number, in which the next property is Pythagorean triplet. Now, let's see what are Pythagorean triplets. Yes, students. Now, Pythagorean triplets are if sum of two numbers results into a square number, then all these three numbers form a Pythagorean triplet. What do you mean by that? If you add square of two numbers, means if any one number and second number, you take their squares and add them, and the answer which you get is a square of any third number, then that three numbers are said to be Pythagorean triplet. You will understand easily with the example. Example 1 is, see here, 3 square plus 4 square. Square of 3 plus square of 4. What is 3 square? 9. And what is 4 square? That is 16. So 3 square plus 4 square, we get 25, which is square of 5. So 3, 4 and 5. These all three numbers are known as Pythagorean triplet. Very important. 3 का स्क्वायर किया और 4 का स्क्वायर किया, उनको ऐड किया और जो आंसर आया वो 5 का स्क्वायर निकला. तो ये तीनों नंबर 3, 4 एंड 5 एक पेयर बनाते हैं जिसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं. और पाइथागोरियन एक पाइथागोरस नाम का मैथमेटिशियन था जिसने पाइथागोरस थ्योरम की डिस्कवर की थी या उसको इन्वेंट किया था. तो उसके लिए आप उसको हायर स्टैंडर्ड्स में रीड करेंगे. फिलहाल इन तीन नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं. In general, for any natural number m greater than 1, we have 2m का whole square, m square minus 1 का whole square equals to m square plus 1 whole square. Now, 2m, m square minus 1 and m square plus 1 forms a Pythagorean triplet. What is this 2m, m square minus 1, m square plus 1? These are 3, 4 and 5. Understood? Now, let's see example number 2. Write a Pythagorean triplet having 18 as one of its member. 18 उसका तीनों में से 18 एक मेंबर होना चाहिए, ऐसा हमें ट्रिपलेट चाहिए. नाउ ये जैसे नंबर्स है ना, मैंने बताया 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये ही फॉर्म में हमें तीन नंबर्स मिलेंगे. ये आपको याद रखना है कि हमें तीन नंबर्स जो मिलेंगे उनके लिए फॉर्मूला ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए. पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमें अभी क्वेश्चन में दिया है कि एक नंबर 18 होना चाहिए. तो लेट m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 18. तो अगर इक्वेशन की तरह सॉल्व करें, 1 को अगर हम यहाँ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा. सो m स्क्वायर इक्वल्स टू 17. अगर m स्क्वायर 17 है तो 17 किसका स्क्वायर है? कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं. सो वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर, इट कैन बी अ फ्रैक्शन. अगर ऐसे नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकाले तो वो फ्रैक्शन में आता है, इंटीजर में नहीं आता है. सो वी डोंट नीड दिस. Then taking again m square minus 1 equals to 18. तीनों हमें ट्राई करने हैं. m square minus 1, m square plus 1, 2m. So m square minus 1 equals to 18. 1 को आप उस साइड ले जाएंगे तो आपको दिखेगा प्लस 1 हो जाएगा. तो m square equals to 19. 19 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का. m square equals to 19, कोई भी नंबर का स्क्वायर 19 नहीं हो सकता है. Thus again value of m will not be an integer. Now let's consider third option, 2m equals to 18. So 2m equals to 18. So m क्या हो जाएगा? 18 divide by 2, that is m equals to 9. So 9, m को अगर हम 9 मान ले तो m square minus 1 क्या होगा? m is 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 minus 1 you will get 80, and m square plus 1 again 9 का स्क्वायर 81 plus 1 81 plus 1 you will get 82. So 80, 82 and 9. We got 3 numbers. So our Pythagorean triplet is 18, 80 and 82. 2 we have to find because 1 is already given. m की वैल्यू हमें 9 मिली है और 2m हमने 18 लिया है. तो तीन नंबर्स हो गए 18, 80 and 82. These are Pythagorean triplets. मीन्स आप दो नंबर का स्क्वायर करेंगे तो तीसरे जो आंसर आएगा वो तीसरे नंबर का स्क्वायर होगा. फॉर दिस आई विल शो यू वन मोर एग्जाम्पल. Now this is the illustration of your textbook. Find a Pythagorean triplet in which one member is 12. एक मेंबर जो है आपका वो 12 होगा. तो 12 पहले आप चेक करेंगे. हम लोग तीन ऑप्शंस के लिए ट्राई करेंगे. 2m, m स्क्वायर प्लस 1 and m स्क्वायर माइनस 1.
तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं, इफ वी टेक m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 12, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 को उस साइड ले जाएंगे, m स्क्वायर इक्वल्स टू 13। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 13 नहीं होता है, सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देन वी विल गो फॉर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 12, तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 minus 1 equals to 11. This is also not correct because 11 is not a perfect square. We will try third option, 2m equals to 12. So this will give us m equals to 6. So this we can do. This is the correct option. तो अभी m की जो वैल्यू है m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 में डालेंगे। m स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, m अगर 6 है तो m का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 दैट इज व्हाट यू विल गेट 37। फिर नेक्स्ट m स्क्वायर माइनस 1, m का स्क्वायर 36 माइनस 1 यू विल गेट 35 और एक मेंबर हमें 12 ऑलरेडी दिया हुआ है। सो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या हो गए, 12, 35 एंड 37। These are the three Pythagorean triplets in the sum. Understood students? आप एक बार फिर से देखेंगे, इसको रिपीट देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Now students, let's start the new topic, finding square root of a number. अभी तक हम squares find कर रहे थे, अभी square root. Square root is the inverse operation of squaring. Squaring का उल्टा है। जैसे अब 2 का स्क्वायर क्या लिखते हैं, 2 into 2 equals to 4, तो अभी हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। The positive square root of a number is denoted by the symbol, स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। Now see it is given square root of 9 equals to 3 और इसका इनवर्स करें, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 square equals to 3 into 3 that is 9। Like 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 into 4 equals to 16, therefore square root of 16 equals to 4, ये इसका इनवर्स ऑपरेशन है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 into 7 that is 49, yeah, therefore square root of 49 equals to 7। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ऐसे हम स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, स्क्वायर का रिवर्स होता है वो। स्टूडेंट्स अभी इसको ही हम देखेंगे, एक फर्स्ट टाइप है, कैसे हम स्क्वायर रूट के भी अलग अलग टाइप्स हैं। फर्स्ट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड था, फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यू कैन ऐड द सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जब ऐड करके हमको स्क्वायर मिलता था तो सब्ट्रैक्ट करके हमको वो स्क्वायर रूट से वो पर्टिकुलर नंबर तक आ जाएंगे। आप देखेंगे इन दिस मेथड given square number is subtracted from successive odd natural numbers starting from 1 until result of subtraction does not become 0. See example is given, find square root of 16. तो अभी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक 16 minus 1 equals to 15, 15 minus 3 equals to 12। पहला ऑड नंबर क्या है 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा ऑड नंबर 5, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को कब तक, 16 में से 1 गया 15, फिर 15 को लेके उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो, यू विल गेट 12, फिर 12 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो 7, 7 में से नेक्स्ट ऑड करो तो 0। सो जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। दिस इज हाउ वी डू द find the square root of a number by subtracting successive odd natural number. You can also see the examples. One more example, find square root of 169 using repeated subtraction. Solution is given like 169, पहला odd number 1। अब देखो odd numbers भी कैसे यूज किए हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, जब तक आंसर 0 नहीं आता है। पहले 169 में से 1 किया माइनस तो यू गॉट 168, तो अभी हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 168, फिर माइनस किया तो 165, तो नेक्स्ट 165 को लेंगे। इस तरह से आप रिपीटेड ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक आपका आंसर 0 नहीं आता है। सो वी कैन सी दैट द रिजल्ट इज 0 एट द 13th स्टेप। द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। जितने स्टेप्स आपने किए वो उसका आंसर होगा। 13th स्टेप पे आपको 0 मिल रहा है, सो स्क्वायर रूट इज 0। square root is 13. So square root of 169 is 13। जैसे हमने इससे पहले वाले में देखा 4 स्टेप्स में हमको 0 मिल गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 was 4। Thank you students, stay safe, keep studying।